بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر سونیا سلیم. ہم بیسیکلی سوشیو انجینئرنگ ٹیکنالوجیز کو اوبیسلی میں اس کو رن کر رہی ہوں, اور ہم نے کچھ برانڈس پاکستان میں لے کے آتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل برانڈز ہوتے ہیں اسکول, کالج اور یونیورسٹی سے ریلیٹڈ. ریسنٹلی ہم نے سرٹی پورٹ ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. یو ایس اے بیسڈ کمپنی ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں کچھ کام کرنے کے لیے. انٹرنیشنل اسکل سرٹیفکیشنز میں اگر بات کریں تو اس میں آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشنز ہیں, کمیونیکیشن اسکلس ہیں, مائیکروسافٹ کی سرٹیفکیشنز ہیں جن کے ایگزامز ہم کنڈکٹ کرواتے ہیں. اچھا, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ان کو اسٹوڈنٹس کو ہم ایک ہنر دے رہے ہیں جس کے تھرو پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں. جب آپ کے پاس ہنر ہے تو اگر اس ہنر کو آپ یوز کرتے ہیں تو اوبویسلی وہ ڈفرینٹ دنیا میں جاتی ہے, اور ڈفرینٹ دنیا میں جا کے اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. ریسنٹلی ہم نے کچھ لاکھ ملک صاحب کی کمپنی ہے جن کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے فار انٹروڈیوسنگ دس پروڈکٹ ان کوئٹہ, بلوچستان. کچھ لاکھ یہ صرف کچھ لاکھ ایریا کے لیے نہیں ہے, یہ پورے بلوچستان میں ہمارا پلان ہے تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ہر جگہ پہنچے. سندھ میں ہم نے کام کیا, ہم نے پنجاب میں کام کیا, ہم نے ہر جگہ فیڈرل میں تو ہم آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئٹہ کو, بلوچستان کو اور اس کے جتنے بھی ایریاز ہیں اس کو ہم پروموٹ کریں. اس میں ایک زبردست بات یہ ہے, ہماری خواتین, میں اسلام آباد وومن چیمبر کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. وومن امپاورمنٹ کے لیے ہم بیسیکلی ہر وقت ہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. ہم اگر بات کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں. اوبویسلی یہ کمپنی میں رن کر رہی ہوں اور میں فاؤنڈر ہوں, میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں جو خواتین ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہ جن کو کام آتا ہے, جن کو آئی ٹی کا پتہ ہے, ایجوکیشن انہوں نے ماسٹرز کیا ہے, بیچلرز کیا ہے, ایف اے کیا ہے, وہ لوگ سامنے آئیں, وہ گھر بیٹھ کے کام کریں. انہیں کوئی فورس نہیں کرے گا وہ باہر نکلیں. وہ گھر بیٹھ کے اگر $1,000 $500 کما لیتے ہیں تو اس سے ملک کی اکانومی ہی آگے بڑھتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارا چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں پوری کہ اس کو آگے لے کے چلیں, اور اس میں بہت اچھی سپورٹ ہمیں ملک صاحب کی طرف سے ملی. بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں سے ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی ڈسٹریبیوشن چاہیے فار دیئر کمپنیز اینڈ فار دیئر سٹیز. ملک صاحب کے کیس میں انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس کا مطلب اس کو انڈرسٹینڈ کیا. موسٹلی لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہنر, اگر آپ نے ماسٹرز کر لیا, آپ نے بیچلرز کر لیا ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جاب ملے گی. ہم اگر اس طرح کا کوئی ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے جو کہ اڈوبی, اوبویسلی اگر آپ اس پہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اڈوبی کے ڈفرینٹ فیچرز ہوتے ہیں, کانٹینٹس ہوتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنانا آتی ہے, تبھی آپ کو کسی آفس میں جاب ملتی ہے. تو ہمارا جو ابھی کولیبریشن ہوئی ہے ملک صاحب کے ساتھ, انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. پہلے بھی ان کی این جی او نے ماشاءاللہ سے کافی اچھا کام کیا ہوا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے پورے بلوچستان کو ہم اس چیز سے مطلب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو ہم بھرپور طریقے سے اس پہ کام کریں مل جل کے. اور ایجوکیشن کاؤنسل کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو کنسلٹنسی ہماری جو اس کے ساتھ ساتھ, ایک تو ہم ہنر دے رہے ہیں, دوسرا ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں باہر جا کے پڑھنے میں. ہم جب بھی اس کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یو کے میں, امریکہ میں ایک تو ایجوکیشن لینی ہے, دوسرا آپ نے وہاں جا کے جابس کرنی ہے, ہم وہ بھی کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی پروموٹ کریں بلوچستان میں. اگر بچے انٹرسٹڈ ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں, انہوں نے ماسٹرز کیا ہے, بیچلرز کیا ہے, دے کین کانٹیکٹ آر آرگنائزیشن, کیونکہ اب تو یہ کولیبریشن ہے. سوشیو انجینئرنگ ٹیکنالوجیز, سرٹی پورٹ اینڈ کچھ لاکھ جو ویلفیئر ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ مل کے ہم ایک یہ چیز چلا رہے ہیں. اوبویسلی اس کو پھر ہم آگے لے کے چلیں گے. دوسرا, صرف اسٹوڈنٹ اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کی بات نہیں ہے. پروفیشنلز, آپ جیسے میرے جیسے پروفیشنلز جو کہ چاہتے ہیں ان کی جابس اپ گریڈ ہوں. آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ورلڈ میں آپ کو اگر اس کا پتہ ہو تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. جب آپ کے پاس کوئی کورسز, ٹریننگز کی جاتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں, آٹومیٹکلی آپ کو ایک تو پروموشن ملتی ہے اور سیلری ریز ہوتی ہیں, جیسے پی ایم پی آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں. تو وہ چیز بھی ہم اس کو کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, یہ کارپوریٹ سیکٹر, پرائیویٹ, پبلک سیکٹر,
इन सब को केटर करेगा. So this is all from my side. Thank you. जी हमने सिंध में, पंजाब में, आप फेडरल में काम किया है, वहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चंस हमें सुनने को मिलते हैं. हम कोयटा बलूचिस्तान इस एरिया के लिए स्पेशल सब्सिडीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. सर्टीपोर्ट बेसिकली हमें इसमें सपोर्ट करेगा क्योंकि इंटरनेशनल चेन है. उसके अलावा कुछ फंडिंग जो डोनर फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनको हम कुछ कॉन्सेप्ट पेपर वगैरह अभी से हमने शुरू कर दिया है मलिक साहब के साथ मिलके, तो हमारा पूरा प्लान है कि जितनी भी NGOs यहाँ काम कर रही हैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व रखें और इसमें सब्सिडीज़ को हम इंट्रोड्यूस करवाएं फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली जो कि पढ़ रहे हैं बच्चे स्कूल्स में. मैडम ये बताएं कि बलूचिस्तान में पूरे मुल्क में कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको बनाने में आगे ले जाने में. अब गुजरात में सोसाइटी फलाई तंजीम है, वो फला बहबूद का काम करता है और उस फला बहबूद के लिए बहनों से सोसाइटी बनाया, उसके स्कूल भी चल रहा है, कुछ भी होगा जो भी जी जी ये आपका जो ये तो बिजनेस का मामला है. तो फलाई इदारा बिजनेस को कैसे प्रमोट करेगा या बलूचिस्तान में आप कैसे वो करेंगे? रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं, गरीब बच्चों में बैठकों में हम लोगों ने छोटे छोटे स्कूल खोले जो यहाँ पे सहूलतें नहीं. जी 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 हाँ जी. बिल्डिंग में स्कूल खोल के बस अपना एक शुरू हो जाते हैं. तो आप किस तरह इस चीज़ को प्रमोट करोगे लोगों में अवेयरनेस को? जी 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 इसका मैं आपको जो जवाब है वो इस तरह दूंगी. एक इंटीरियर आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, वहाँ के आपने जिस तरह के बताया है कि वहाँ पर छोटे छोटे जगहों पे स्कूल्स खुले हुए हैं, गली मोहल्लों में हैं. वो बच्चा एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं आपको, उसके एरिया में इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, लेकिन उसको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना था इंटरनेशनली. वो एक टीले पे चढ़ा है, उसने इंटरनेट एक्सेस लिया है और उसने ये सर्टिफिकेशन किया है बाय सिटिंग देयर. उसको किसी भी कूचे गली मोहल्ले की ज़रूरत ही नहीं है. उसके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास एक फ़ोन तो हम सब के पास मौजूद है. अगर आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हैं. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं. जी जी प्लीज़. आपकी सोशल वेलफेयर की एक्ट डॉक्टर साहब ये ज़रूरी नहीं कि आप वो नहीं करें. आपके सोशल वेलफेयर में वो है कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप काम कर सकते हैं. और दूसरी आपको पता है बलूचिस्तान में हालात बहुत जो ख़राब हुई, आपको पता है कि इस्लामाबाद के डोनर भी ये मैडम वाकई में उसको समझता हूँ कि खातून होकर कोयटा आ गई. बहुत से लोग जो बलूचिस्तान आते हैं, आपको पता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम है यहाँ पे. हमारी गवर्नमेंट अब बलूचिस्तान इजाज़त नहीं देते. जापानी 9 साल से बलूचिस्तान नहीं आ रहे थे, अभी उन्होंने प्रपोजल वो कर दिए. और दूसरा, कब तक हम डोनर के सारे पे बैठे होंगे NGOs वाले कि भाई हमें फंड देगा. तो अगर हमारी बलूचिस्तान में बहुत से ख़वातीन मेल फीमेल जैसे मैडम ने कहा, बहुत से बच्चे जो डिग्री पास करके ऐसे ज़रूरी थोड़ी खामखा आपको सरकारी मुलाजिमत मिल जाए, तो हम उन लोगों पे वो कर सकते हैं. पाबंदी तो नहीं है, हम बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट पे वो कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं. ये भी फलाह बहबूद ही है, तो ये इसलिए इनका चुनाव किया है क्योंकि ये हमारे पास आए हैं. हमें लगा कि इन्होंने हम देखिए इसी तरह हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट नहीं करते, एक पूरा क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व है. इनका कुछ काम देखा है तो ये इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है एंड हमने फाइनल किया है. सो ये फलाह बहबूद ही है हमारे मुल्क की, हमारे बच्चों की जो कि मास्टर्स कर लेते हैं, बैचलर्स कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती. तो हमारा ये बेसिकली फलाह बहबूद ही मैं इसको कहूँगी. नहीं मुलाजिम नहीं बनेगा. हमारे पास एक सर्टिफिकेशन है जो कि बिजनेसमैन बिजनेस वूमन बनाता है. आप जब स्कूल कॉलेज में ही हैं और आपका बड़ा बच्चा टैलेंटेड है, बच्ची टैलेंटेड है और वो बिज़नेस करना चाहता है, तो हम लोग उसको बताते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है. बिज़नेस 1 रुपये से भी शुरू हो सकता है और 1 लाख रुपए से भी शुरू हो सकता है. कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं. हम उस बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर तुम
नौकरी, अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ हमने उनसे बातचीत की तो वो कहते हैं हमारे पास ब्रिलियंट इंजीनियर्स हैं, लेकिन हमें सेम क्वेश्चन उन्होंने किया कि हमें ये समझ नहीं आती कि ये इनको सिर्फ जॉब्स क्यों चाहिए, ये बिज़नेस क्यों नहीं करते। उसमें क्या कमी थी? कम्युनिकेशन स्किल्स की। हमने उसको कम्युनिकेशन स्किल्स का ऑप्शन दिया है कि आप वो ट्रेनिंग्स लें, वो सर्टिफिकेशंस करें, जिससे आपके बच्चे कम्युनिकेशंस अपने जो कुछ पढ़ा है, जैसे आप इतना अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी आपको चीज़ें समझ आ गई हैं और आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो वो चीज़ें हमें बेसिकली ये सिखाती हैं। तो आपको सिर्फ जॉब नहीं करनी। मैं तो चाहती हूँ हर बच्चा बिजनेस करे, क्योंकि मुझे नहीं याद मैंने कभी लाइफ में जॉब की है। मैंने अपना स्टार्ट ही बिजनेस से किया था। अगर मैं कर सकती हूँ विदाउट एनी फंडिंग। जी 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 सोशल वर्क का नाम लेते हो बिजनेस, जी जी तो ये सोशल वर्क नहीं है, ये बिजनेस है जो आप प्रमोट कर रहे हो, अच्छी बात है, जी। लेकिन लोगों को इसका नाम बिजनेस होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो कि वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू, दूसरे के थ्रू, इस तरह नहीं। वो इसलिए है जी जी, आप सही कह रहे हैं। इसको बिजनेस का नाम देके प्रमोट करो ताकि हमारे पढ़े लिखे बच्चे आगे बढ़ें। नहीं इसमें जी जी जिब्रान, अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सर मैं 2-3 चीज़ों की वजाहत करूँ। हम सोशल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रॉफिट बिजनेस ही है। कुछ लाख के साथ इसलिए हमने जो है हाथ में लाया कि कुछ लाख काफ़ी जगहों में बलूचिस्तान के अंदर उनकी रसाई है। एक्सेस है, हाँ। तो उसके थ्रू ये होता है कि हम काफ़ी सारे नौजवान यूथ या ख़वातीन जो हैं जो पढ़ के आगे बढ़ना चाहती हैं उन तक पहुँच सकते हैं। सेकंड काम जो हमारा है, हम ठीक है हम बिज़नेस करने तो आए हैं, लेकिन हम क्या फ़ायदा लेकर आ रहे हैं कोयटा के बच्चों के लिए या कोयटा के नौजवानों के लिए कि हम सब्सिडाइज रेट पे लेके आ रहे हैं जो कि पंजाब या उस पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ताकि बच्चे आगे बाकी इस और चीज़ को इस्तेमाल कर सकें, इसको यूज़ कर सकें। दूसरा एक चीज़ आपने जो बात की कि वाकई हमारा जो जहन है वो नौकरी की तरफ जाता है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, कुछ सर्टिफिकेशन इसमें ऐसी मौजूद हैं जो कि आपने अगर ज़ाहिर है आप लोग तो सहाफ़ी लोग हैं, आप लोग खुद खबर छापते हैं। फ्रीलांस की दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। ठीक हो गया, दैट वो नौकरी नहीं है, इट्स ओपन बिजनेस होता है, हर बंदा अपना बिजनेसमैन होता है। और उसमें जो सबसे टॉप यूज़ टूल जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, कि सबसे ज़्यादा जो कमाई हो रही है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टूल से हो रही है। अब हम जो सर्टिफिकेशन करते हैं, अब आप लोगों ने शायद सुना होगा, आई एम श्योर सुना होगा, एडोबी का नाम, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर का नाम सुना होगा। एक ज़माने में कोरल ड्रॉ इस्तेमाल होता था, तो एडोबी फोटोशॉप की हम मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं। अब ये वो सर्टिफिकेशंस हैं कि जो अगर बच्चा सही तरीके से कर लेता है और उसको सही गाइडेंस मिल जाए। अब ये नहीं कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि आप सर्टिफिकेशन कर लिए हमें पैसे मिल गए ख़त्म। हमारा काम है उस बच्चे को गाइड करना कि बच्चे आपने या नौजवान आपने या प्रोफेशन आपने इस एरियाज़ में जाके आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके अपने आप को सेल कर सकते हैं। सेल करने का मतलब अपने हुनर को सेल कर सकते हैं, ताकि अगर आप देखें, मैं एक सीधी सी बात बताऊँ, कोई ऐसी बात नहीं। आम तौर पे अगर आप नौकरी करते हैं, बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट करता है तो 25 से 35 हज़ार की लग जाती है नौकरी। अब उस पर भी हम शुगर करते हैं। ये वो स्किल्स हैं, फ़ोटोशॉप, यूनिटी, एनिमेशन, ये वो स्किल्स हैं जिस पे आप फ्रीलांसिंग की मार्केट में कम से कम $500-600 पर मंथ के हिसाब से लग सकते हैं। ये मैं आपको बहुत मोहतात अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर किसी एक महीने उसने 200 कमा लिया तो किसी एक महीने उसने 1000 भी कमा सकता है। तो वो उसका बैलेंस एवरेज बता रहा हूँ आपको। ये बच्चों को या नौजवानों को उसको एक्सेस देता है कि वो बिज़नेस अपने आप इंडिपेंडेंट हो सकें, खुद मुख्तार हो सकें, खुद कमाई कर सकें। किसी नौकरी, जैसे हमारे यहाँ मुल्क में नौकरी नहीं है, मुश्किलात हैं, माशी बहरान है, तो नहीं है नौकरी। तो नौकरी कैसे पैदा करनी है? अगर जब बच्चा बाहर के लिए काम करेगा, मुल्क में फ़ॉरेन करेंसी आएगी, मुल्क का भी फ़ायदा होगा, बच्चे का भी फ़ायदा होगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। और आपकी जो कोयटा की डेवलपमेंट की जो बात करें, कोयटा के बच्चों की, नौजवान की, ख़वातीन की, ये इसी तरह डेवलप होगी जब तक कोयटा का नौजवान, ख़वातीन या बच्चा खुद मुख्तार नहीं होगा, खुद कमाना शुरू नहीं करेगा या उसकी रसाई बैनुल-अक़वामी तौर पर नहीं होगी, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी तरक्की नहीं हो सकती। तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो स्किल दिलवाए जाएँ जिससे इनकी रसाई हो जाए बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर। और दूसरा ये है जी, जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स वगैरह कर रहे हैं वो आपके इस बिजनेस में जी जी, हम इसमें एक और चीज़ में बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग ना सिर्फ ये ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, उनको जो चाहिए वो क्या चाहिए, जॉब, बिज़नेस करना, बाहर जाके पढ़ना, वो सारे रास्ते भी बताते हैं। अगर वो बाहर चला गया है, लेट्स से वो यूके चला गया है, अब यूके में उसको प्रॉब्लम्स आई हैं, उसने जॉब करनी है, इंटर्नशिप करनी है, डिफरेंट पाकिस्तान में भी अभी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये चीज़ें कर रही हैं। जैसे PSEB है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, वो इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है।
کوئٹہ ہو, سندھ ہو, کہیں کے بھی بچے ہوں, وہ ڈفرینٹ بڑی آرگنائزیشنز میں 20,000 وہ ماہانہ دیتے ہیں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کچھ امپرومنٹ آئی ہیں. پہلا سٹیپ تو لینا ہے نا جی کسی نے, تو ہم نے کہا ہم کیوں نہ کوشش کریں ملک صاحب کے ساتھ پہلا سٹیپ لیں. اور ڈیجیٹل جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ویزیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ جو کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے ہیں, تو اوبیسلی وہ چیز اس طرح سے وہ اس طرح سے وہ اردو کا ورڈ ہے کارآمد ثابت نہیں ہوتی. میں کافی عرصہ باہر پڑھ کے باہر مطلب رہ کے آئی ہوں. میں نے کبھی بھی کوشش کی, مجھے بہت زیادہ آفرز آئیں جابس کرنے کی, بٹ میں نے کبھی اڈاپٹ نہیں کیا. میں چاہتی تھی اپنے ملک میں آ کے یہاں کے لیے کچھ کیا جائے. تو جب تک آپ لوگ سب میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں سکسیزفل ہو نہیں سکتی. تو میں پوری سپورٹ اوبیسلی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے, اور انشاءاللہ اس کو مل کے چلائیں گے, اور آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑے گا. بلوچستان کی جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے یا ان کے کالجز ہیں یا پروفیشنلز ہیں, اس پہ کتنا یہ فائدہ ہوتا ہے.